Good morning, students. Here we are on the lecture 4, in which we will discuss about basic nature of amines. Right? In this lecture, we'll discuss about basic nature of amines. It is one of the chemical properties of amines. As we know, the basic nature. What is important in basic nature? If any compound is basic, it reacts with acid and forms salt, as we know very well. So in this case, you can see amines react with HX and take hydrogen from it and form NH3 plus and X minus. एक साथ हम लिख सकते हैं RNH3 plus X minus. So it takes H plus and HX give H plus. So HX act as an acid and RNH2 act as a base. Because of the pair of electron it act as a base, that's why generally it is termed as Lewis base. It react with acid and form salt. In basic condition, it removed from the salt and form RNH2 and X minus liberate और X minus formed और separated. अगर हम यहाँ NaOH लेंगे तो NaX बन जाएगा, right? And it happens because जब base से ये इस condition में now it is, you can see Bronsted acid base concept में हमने देखा था, it is a base, it combined with hydrogen and form a conjugate acid, and when conjugate acid combined with a base, again it form the initial compound. That we know very well. Sometimes we can also write it as NH3OH, RNH3 plus OH also we can write it, right? Conjugate acid base reaction के through strong acid और strong base का combination ही आगे further reaction करता है, और उस condition के हिसाब से भी ये बिल्कुल सही है. अगर RNH2 और RNH3 plus में compare करें, so among these two ये ज़्यादा acidic होगा, और X माइनस और OH माइनस में कंसीडर करें X माइनस मतलब हैलोजेंस का माइनस, तो ऑब्वियसली OH माइनस ज़्यादा बेहतर बेस होगा. तो इसलिए ये भी रिएक्शंस कंप्लीट होता है. तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है. तो यहाँ आपने देखा ये सारे रिएक्शन जो हैं कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं, चाहे आप इस रिएक्शन की बात करें चाहे आप इस रिएक्शन की बात करें. यहाँ पर ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पर एक कॉन्जुगेट बेस या बेस था तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड था. ओके, सो दीज रिएक्शन डिस्क्राइब the basic nature of amines. Amines have basic nature, we can conclude on the basis of these reactions, right? What happens when amines put into the water? It takes hydrogen from water. It means they are more acidic than water. They are more basic than water. Yes or no? They are more basic than water because they takes hydrogen from water. So they are more basic than water, right? So it is more basic and water is less basic, so act as an acid. So complete the reaction, RNH3 plus and OH minus will form. Okay, this reaction occur. हम देख सकते हैं NH3 और H2, हमने जो ऑर्डर बनाया हुआ, आप NH3 और H2O को कंपेयर करें तो आप देखेंगे उस ऑर्डर में H2O पहले आता है और NH3 बाद में आता है. हमने बहुत पहले से वो ऑर्डर लिखा हुआ है, लास्ट ईयर से, एक बार और मैं आपको बता चुका हूँ. तो इसीलिए ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है. और अगर हम उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखें तो ऐसा हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे. H2O को हम अगर यहाँ साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जो केवल बेस को डिस्क्राइब करता है, एंड दिस इज कॉल्ड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इट विल बी pKb. Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है बेसिक नेचर उतना ज़्यादा होता है, लेकिन pKb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है बेसिक नेचर उतना कम होता है. इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एसिड ऑल्सो, K is greater than
के जैसे के और के भी ज़्यादा होते हैं, अगर बी आर के ज़्यादा होता तो हम कहते थे एसिडिक नेचर ज़्यादा है, के भी ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे बेसिक नेचर ज़्यादा है, और उसका नेगेटिव लॉगरिथम उसका उल्टा होगा, के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, बिकॉज पी के बी इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी, राइट। हियर यू कैन सी नेम ऑफ अमाइंस और उनके डिफरेंट डिफरेंट पी के बी वैल्यूज हैं। अब ये वैल्यूज किस तरह से वेरी करते हैं, विल डिस्कस about it also in the next slide. So here it is concluded that amines act as a base. Now how their basicity vary and how can we compare the basicity with the presence of different groups with the nitrogen, with nitrogen we can compare here structure basicity relationship of amines. Here we are, right? So it is very much clear that if we are talking about alkynes versus ammonia, एक बात तो क्लियर हो गई कि क्यों होते हैं, why amines are basic, so due to the presence of lone pair of electrons, एक lone pair electrons होता है और इसलिए amines basic होते हैं। तो obvious it is very much clear that the ease of giving lone pair will decide the strength of basic nature of amine, और ऑब्वियसली जब किसी को लोन पेयर वो देगा तो n के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो वी कैन सी ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड, किसी एसिड से H प्लस लेके कैटायन बनाने की जो ईज होती है, इट मीन्स द टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एसिड्स, कितने आसानी से वो अपना लोन पेयर दे सकता है, कितने आसानी से वो कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन बना सकता है, ये डिसाइड करता है कि उसका बेसिक नेचर का कैसा होगा। जहां आसानी से बना लेगा वहां बेसिक नेचर अच्छा होगा, जहां आसानी से नहीं बना पाएगा वहां बेसिक नेचर अच्छा नहीं होगा, राइट। सो अगर वी आर कंपेयरिंग एल्केन अमाइंस वर्सेस अमोनिया, इन दिस केस जब हम एल्केन अमाइंस और अमोनिया को कंपेयर करते हैं तो उस केस में तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड होता है सॉल्वेशन, और थर्ड फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस और क्राउडिंग। लेट वी डिस्कस वन बाय वन। एल्केन अमाइंस, इन एल्केन अमाइंस alkyl group bonded with nitrogen, and we know that alkyl group is showing plus I effect, positive inductive effect, right? So if inductive effect, what is inductive effect? The pushing of electron density toward more electronegative atom is called inductive effect, right? So alkyl group has plus I nature, it is pushing electron density toward nitrogen. It means it enhances electron density on nitrogen, and if it enhances electron density over nitrogen, electron density increase over nitrogen, and in that case tendency to share lone pair with acid or H plus increase on nitrogen, or we can say ease of formation of cation by accepting a proton enhance, right? So so basic nature increase, so due to the inductive effect basic nature increase. So अगर if we are talking about, अगर हम, मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी नहीं है, if we are talking about the basic nature of amines in gaseous state, अगर हम amines के basic nature को gaseous state में डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, basic nature of amines in gaseous state, जनरली हम इसे कंसीडर नहीं करते, बट अगर ऐसा है सो इन दैट केस टर्सरी, बिकॉज टर्सरी में तीन एल्काइल ग्रुप होंगे, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, राइट। बट बिकॉज the amine basic nature of amine generally observed in solution, so we need to discuss about them also. Now let me discuss about the second factor, that is solvation. The solvation completely based
those compound which can form hydrogen bonding, the solvation of those compound in water completely based on the strength of hydrogen bonding. You can see here very good analysis given here. This primary amine when give hydrogen ion to water and form carbocation, form 3 hydrogen bond with water, or simply in RNH2 case 2 hydrogen bond with water. When secondary amine form cation, will form 2 hydrogen bond with water, and when tertiary amine we are talking about, form single hydrogen bond with water in cationic form, I can say. Right? So due to the formation of 3 bond, stabilization of this cation is highest in water. Right? This is relatively lower and this is lowest. So we can see कि सॉल्वेशन प्राइमरी का ज़्यादा होता है और प्राइमरी से बने हुए कैटाइन का ज़्यादा होता है, बोथ कैन बी से. सो दैट्स वाई इनका बेसिक नेचर रिलेटिवली कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज सॉल्वेशन ज़्यादा हो रहा है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, दैट इज, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो एक और चीज़ आपको पता होगा कि ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये उतना ज़्यादा बेसिक होगा. यस और नो, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था, दिस इज बेस, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड. तो जो यहाँ पर है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा यानी उतना वीक होगा, और जितना ज़्यादा ये वीक होगा ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. यस और नो, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, है ना. अगर कोई डाउट होगा तो जरूर आप पूछ सकते हैं. तो हमेशा जो इधर साइड होता है वो स्टेबल होना चाहिए, जो स्टेबल होता है वो वीक होता है. तो यहाँ जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, वीक होना चाहिए. जो यहाँ होता है वो रिलेटिवली अनस्टेबल होना चाहिए, तभी वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है. स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड होना चाहिए. तो ये बहुत, जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा. तो यहाँ देखिए टर्सरी जो है 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. टर्सरी का कैटायन जो है वो 3-3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है. इट मीन्स इसका सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा है ड्यू टू द सॉल्वेशन ऑफ कैटायन ऑफ प्राइमरी अमाइन. Due to the highest solvation of cation of primary amine, it get more and more stabilized. Right? Relatively less solvation here, relatively the least solvation here. So solvation also will decide the basic nature of amines. Right? And the third important condition is crowding. It is very practical way. अगर आप एक फेयर में हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और आप अपने रिलेटिव वंस जो है आप सब फ्रेंड्स गए हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर हैं या आसपास भी है, तब भी हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, क्राउडिंग में, भीड़ में थोड़ी मुश्किल होती ही है. तो वही इश्यू होता है. तो जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती है बेसिक नेचर कम हो जाता है. तो दो चीज़ें जो हैं, द सॉल्वेशन एंड द क्राउडिंग जो है विल फेवरेबल इज वो लास्ट 2 फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमाइंस एंड फर्स्ट फैक्टर इज फेवरेबल फॉर बेसिसिटी ऑफ टर्सरी अमाइंस. सो द कंक्लूसिव रिजल्ट फॉर मोस्ट फॉर मेथाइल अमाइंस इज दिस. अगर आप मेथाइल अमाइंस की बात कर रहे हैं तो उनके लिए कंक्लूसिव जो अरेंजमेंट होता है वो ये होता है. आप देख सकते हैं सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आ जाते हैं. अगर हम मिथाइल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिथाइल अमाइंस, राइट, एंड उनके बाद जो है वो आ जाते हैं टर्सरी, यानी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी एंड देन अमोनिया. But if we are talking about others, you can see secondary, then tertiary, then primary and then ammonia. So जैसे जब बाकी सब के लिए जाते हैं तो सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी ऑर्डर देखने को मिलता है. मिथाइल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमेशा याद रखें. दिस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? सो द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर, 1 is inductive effect,
the tendency to push electron toward nitrogen. The second one, solvation, the tendency of cation of amines, the solvation of cations of amines in water, and the third one is crowding, the steric hindrance, right? So three factors are important which will decide the basicity of amines, alkane amines. Okay, now some other factors are also there. Aryl amines versus ammonia. In aryl amines or in conjugated amines, I'm sharing some more example. I will share some more example of conjugated amines also with you. So here you can see this is also conjugated amines, aryl amine and conjugated. Conjugated means this lone pair is conjugated with ring, lone pair in resonance with ring. You can see ये लोन पेयर यहाँ डायरेक्टली यहाँ पुट करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज, फिर माइनस चार्ज पूरा रोटेट हो सकता है, फिर ऐसा बदल जाएगा. यस और नो? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस conjugation it stabilize, and if it stabilize, in that case it becomes weaken, right? In the second way you can see, if it get hydrogen ion from NH3 plus, so if we compare NH3 plus and NH2, it is relatively less stable because it cannot show resonance or conjugation. Conjugation or resonance leads to stabilization, that we know very well. But in this case, this NH3, आप कहेंगे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा. देखिए कॉन्जुगेशन है नहीं, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड. वी नो वेरी वेल, यस और नो? सो इस कंडीशन में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, राइट? सो इन दिस केस आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो ये रिलेटिवली इससे अनस्टेबल है. इसका मतलब अगर हम ऐसा रिएक्शन लिखते हैं, जैसा मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं, इफ वी आर राइटिंग सच रिएक्शन NH2 एंड H प्लस लेने के बाद इट विल बी NH3 प्लस. So we know very well for the completion of reaction this will be stronger and this will be weaker. But in this case that we know it is less stable and it is more stable. And in that case less stable it means more reactive. It is acid, more reactive acid it is. और more stable it means less reactive. So if we are talking about कि ये एसिड है तो हम कहेंगे कैसा एसिड हो जाएगा? more reactive मतलब strong एसिड. ये कैसा हो जाएगा? strong एसिड. और ये कैसा हो जाएगा? weak base. तो ऑब्वियसली इधर साइड में वीक नहीं हो सकता, ये वीक है तो ये रिएक्शन नहीं होगा. पहली चीज तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना? तो ऑब्वियसली ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये स्ट्रांग होगा और ये कंपैरेटिवली वीक होता है. मैं केवल इस चीज को कंपेयर करना चाहता हूं, राइट? सो यहां से H प्लस जो है वो ये गेन करता है और ये बनाता है. अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन उतना फेवरेबल नहीं होगा, ये ज्यादा यहां से यहां रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा. ओके, सो ये क्लियर हो गया कि NH3 प्लस विल बी मोर एसिडिक. ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर व्हाट आई वांट टू से. तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो कॉन्जुगेटेड, लेट मी शो यू सम मोर कॉन्जुगेटेड अमाइंस जहाँ पर NH2 कॉन्जुगेशन में रहता है, लाइक CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2. इन दिस केस दिस लोन पेयर, अगर ये बॉन्ड इधर शेयर होगा तो दिस लोन पेयर विल कम हेयर. सो यहाँ कॉन्जुगेशन में होता है. तो ऐसे कॉन्जुगेटेड अमाइंस जो होते हैं और जो एनिलीन्स हैं, इन सब की बेसिसिटी अमोनिया से कम हो जाती है क्योंकि इनके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट? तो अगर हम ओवरऑल ऑर्डर सेटअप करें तो अगर हम एलिफैटिक अमाइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एलिफैटिक अमाइंस जिसमें एल्केन हो, एलिफैटिक अमाइंस, या स्पेसिफिकली मैं कहूं क्योंकि एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो माइनस आई शो करने लगते हैं तो उनमें बेसिक नेचर जो है अमोनिया से कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा.
तो एल्केन अमाइंस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर अमोनिया आता है, और उसके बाद अगर हम कहें एल्कीन अमाइंस या एल्कीन अमाइंस हम कह सकते हैं, और फिर हम कह सकते हैं एल्काइन अमाइंस, एल्काइन अमाइंस, और उसके बाद आ सकता है एनिलीन, राइट, और अदर कॉन्जुगेटेड अमाइंस। एनिलीन के अलावा अदर कॉन्जुगेटेड अमाइंस। अगर एनिलीन और अदर कॉन्जुगेटेड अमाइंस की बात करें, एनिलीन एंड अदर कॉन्जुगेटेड अमाइंस, तो हमें देखना पड़ेगा कॉन्जुगेशन किसमें कितना है, राइट, उसी के बेस पे हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने दो एग्जाम्पल अभी देखे थे, एक एग्जाम्पल ये देखा था, इसको और एनिलीन को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, इसमें रिलेटिवली कम कॉन्जुगेशन है। कितने स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं उसी के बेस पे हम ये ड्रॉ करते हैं, राइट। सो मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर हो गया कि क्या ऑर्डर होगा। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूटेड जो होते हैं, एनिलीन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो भी अफेक्ट करते हैं। सो ये बात तो बहुत क्लियर है, चाहे मैं एल्केन अमाइंस की बात कर रहा हूँ चाहे एरिल अमाइंस की बात कर रहा हूँ, हमेशा माइन प्लस आई जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। इसी तरह से प्लस एच बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और माइनस एच बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। इसी तरीके से प्लस एम बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और माइनस एम बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो जब भी हम एसिडिक और बेसिक इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में, तो उस कंडीशंस में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आई हैव सम एग्जाम्पल फॉर यू जिसमें अपन बात करेंगे कि कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और उनके बेसिक स्ट्रेंथ को अपन कंपेयर करते हैं। ओके, some examples like we have NH2 CH3, and another example we have NH2 OCH3, in another example we have NH2 OH, in another example we have only NH2, in another example we have NH2 COOH, in another example we have NH2 or NO2, right? These are some various examples जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ को अपन कंपेयर करने वाले हैं। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, राइट। सो लेट वी डिस्कस। तो हमें कैसे करना चाहिए, सबसे पहले हमें देखें ये यहाँ क्या शो करेगा। तो जनरली CH3 रिंग के साथ जब भी होता है प्लस एच शो करता है और प्लस आई भी शो करता है, लेकिन प्लस एच और प्लस आई में जो है हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा एफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसे ही हम चेक करते हैं। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इट्स शोइंग प्लस एम एंड माइनस आई। एम के सामने माइनस आई बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते, और फोर्थ पोजीशन पे माइनस आई वैसे भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद हम जब आते हैं, सो लेट वी डिस्कस अबाउट OH। तो ये इज शोइंग प्लस एम एंड माइनस आई अगेन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो इट्स शोइंग माइनस एम माइनस आई, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस शोइंग माइनस एम एंड माइनस आई। सो इन दैट केस वी नो कि प्लस एम प्लस एच प्लस आई इनहेरेंस करते हैं, लेकिन इंडक्टिव अगर एच और आई है तो इंडक्टिव को काउंट नहीं किया जाता, और एम आई है तो इंडक्टिव काउंट नहीं किया जाता। तो एम से हम चेक कर सकते हैं, OH का एम सबसे ज़्यादा होता है तो C सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, फिर D आएगा, उसके बाद E होगा एंड देन F। तो हमें उनके जो नेचर है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो सब्स्टिट्यूटेड अगर अमाइंस की बात कर रहे हैं तो उनमें ये ऑर्डर होता है। एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं। इफ वी आर कंपेयरिंग for same group at different position on the ring, in that case NH2 is there, if one is CH3 is there, in other case if NH2 is there and the CH3 is there, in the next case if NH2 is there
and the CH3 is there. So remember, in all three cases, this show ortho effect, and due to ortho effect, basic nature of amines decreases, minimum, बिल्कुल कम हो जाते हैं बेसिक, जैसे एसिडिक नेचर मैक्सिमम हो जाते हैं, अमाइंस के बेसिक नेचर मिनिमम हो जाते हैं. आप उस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं. सो बाकी सारे केसेस में एक ही ग्रुप है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब जैसे यहाँ है तो इट्स शोइंग प्लस आई, ये प्लस एच शो नहीं कर सकता, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दे सकता. मेटा पोजीशन पे ना तो मीसोमेरिक ऑपरेट होता है और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन. और यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, OCH3 और NH2 के साथ, मतलब OCH3 के साथ ऑर्थो इफेक्ट, OCH3 और OH के साथ ऑर्थो इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है. बाकी सबके साथ ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट होता है. तो ये हम इसको देख सकते हैं, और इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं वो बताई जा सकती हैं. तो उस कंडीशन में ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस एच ऑपरेट होगा. यहाँ देखिए मैंने जब कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था तो मैंने वहाँ बताया था कि NH2 ऑपरेट नहीं करेगा, और यहाँ OCH3 और OH नहीं करते. और उसका रीज़न, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर स्टक हो जाता है, वो एक रीज़न होता है. तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं अगर आप ऑर्थो इफेक्ट को थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कुछ आता है तो. ठीक है. CH3I और CH3, ये प्लस H प्लस I, और यहाँ ऑर्थो इफेक्ट. तो ऑर्डर विल बी ABC. सो ऑर्डर विल बी A बेस्ट, B और फिर C. तो ये इनका ऑर्डर होगा जो हमें हमेशा याद रखना है. रिमेंबर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं, और जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी देख सकते हैं. So this is very important part, acidic and basic nature. Remember, this order is very important. Maximum बाकी सबका ऑर्डर यही होता है, एंड केवल मिथाइल अमाइन का थोड़ा सा डिफरेंट होता है. बट वी कैन सी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी इन केस ऑफ मिथाइल अमाइन, एंड इन केस ऑफ इथाइल अमाइन इट इज सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी. Right, and ammonia at last. Okay, we'll discuss doubts in the class. Right, thank you for today.